चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस 9.1 इंट्रोडक्शन। आइए चेक करते हैं। क्लास 11 में एक चैप्टर है चैप्टर 5, उसमें डिस्कस किया गया है हाउ टू डिफरेंशिएट ए गिवन फंक्शन स्मॉल एफ विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ टू फाइंड एफ डैश एक्स, and for given function small f at each small x in its domain of definition. Further, in the chapter on integral calculus, we discussed how to find a function small f whose derivative is the function g, which may also be formulated as follows. For a given function g and find a function f, find a function f such that तो dy dx is equal to gx where y is equal to fx. फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से an equation of the form first this is known as a differential equation. Okay, is known as a differential equation. A formal definition will be given later. Okay, these equations arise in a variety of applications, may it be in physics, chemistry, biology, anthropology, geology, economics, etc. Hence, an in-depth study of differential equations has assumed prime importance in all modern scientific investigations. In this chapter, we will study some basic concepts related to differential equation, general and particular solutions of a differential equation, formation of differential equations, some method to solve a first degree differential equations, and some applications of differential equations in different areas. Now check 9.2. Basic concept. Basic concepts check कर लेते हैं differential equations के. We have already familiar with the equations of this type. कौन कौन सी equations हैं? x square minus 3x plus 3 is equal to 0. This is your first equation. And sin x plus cos x is equal to 0. This is your second equation. And x plus y is equal to 7. This is your third equation. Okay, इन इक्वेशंस को हम लोग देख रहे हैं. अब लेट अस कंसिडर द इक्वेशन. अब आप एक इक्वेशन को कंसिडर करिए इस तरीके से, x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0. दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन. तो आप इन तीनों इक्वेशंस को और ये चौथा, जैसे ये तीनों इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट 4 इज योर x डिवाइड dx प्लस y इज इक्वल टू 0. We see that equation first, second and third involve independent and or dependent variables only, केवल. But equation 4 involves variables as well as derivative of the dependent variable y with respect to the independent variable x. Such an equation is called a differential equation. Okay. अब in general, an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. A differential equation involving derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable is called an ordinary differential equation. That is
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 is an ordinary differential equation. ओके, जिसमें डी वाई डी एक्स का ही फॉर्म है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स with respect to more than one independent variables called partial differential equations, but at this stage we shall confine ourselves to the study of ordinary differential equations. Only now onward we will use the term differential equation for ordinary differential equation. तो इस तरीके से है, और कुछ नोटेशंस के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये जो y डैश है इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश डबल डैश को किया जाए तो हो जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और y ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब अपॉन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फॉर डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर इट विल बी कन्वीनियंट टू यूज एज मैनी डैशेस एज सुपर सफिक्सेस super suffix. Therefore we use notation yn for nth order derivative. ओके, इसको ऐसे लिखेंगे nth ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इट कैन बी रिटन एज dny अपॉन dxn एंड डिग्री का। ओके, अब आइए चेक करते हैं इसके ऑर्डर को, देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का बहुत रोल होता है, तो चेक करते हैं 9.9.2.1 दैट इज योर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल equations. Then now check it. Consider the following equations. Differential equations dy upon dx is equal to e to the power x. This is your equation number 6, and d2y upon dx2 plus y is equal to 0. This is your equation number 7, and d cube y upon dx cube plus x square d2y upon dx2 cube is equal to 0. This is your equation 8. अब आप इसमें चेक करेंगे, दीज इक्वेशन 6, 7 and 8 इन्वॉल्व द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दीज इक्वेशंस आर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। जैसे आप देखेंगे कि ये जो पहला है इसका जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, एंड दिस इज योर थर्ड ऑर्डर। मैक्सिमम कितना है इसमें, थर्ड ऑर्डर है 8 वाले में, तो इसलिए कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, एंड ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ठीक है, ऐसे इसको पता करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो ऐसे करेंगे। तो ये रहा हमारा डिग्री, इतने डिग्री का था। ओके, डिग्री हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं 9.2.2 की, दैट इज योर डिग्री। वो आपका था ऑर्डर था। हाँ, वो आपका ऑर्डर था। अब आते हैं डिग्री के पे चर्चा करने। तो 9.2.2 डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो जो पहले आपने देखा था वो उतने ऑर्डर के थे, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का और ये थर्ड ऑर्डर का है। ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होता उसका ऑर्डर हो जाता। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड टाइम हुआ है तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो वो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपका जो है 9.2.2 जो आपका है ये डिग्री ऑफ है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री फाइंड करना है तो कैसे करेंगे आप देखिए। अब इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 9 एंड डी वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10 एंड लास्ट इज योर dy upon dx plus sin dy upon dx is equal to 0. This is your last equation number 11. अब आप सबको ऑब्जर्व करें, ये इक्वेशन नंबर 11 तक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पीछे भी आपका ये भी इक्वेशन है 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकाले। अब डिग्री की बात करेंगे तो ये 6, 7, 8 और इन सभी क्वेश्चंस में 9, 10, 11 में डिग्री को फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इक्वेशन 9 इज ए पॉलिनोमियल। इसमें होना क्या चाहिए कि पॉलिनोमियल इन वाई ट्रिपल डैश, वाई डबल डैश एंड वाई डैश, मतलब से थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इक्वेशन 10 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश। ठीक है, तो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वाई थ्रू। तो डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड, बट इक्वेशन 11 की बात कर रहे हैं, इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश। 11 की पर्टिकुलर बात किया जा रहा है। तो डी वाई डी एक्स देख रहे हैं, यहाँ पे साइन जुड़ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा। देखिए इसे पॉलिनोमियल के लिए आपके पास इस तरीके से होने चाहिए, जैसे एक्स टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n-1 इस तरीके से होने चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन जुड़ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और तो अब क्या करेंगे, इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश एंड डिग्री ऑफ सच ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड। तो इसका जो डिग्री है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। By the degree of differential equation, when it is a polynomial equation in the derivatives, we mean the highest power positive integral index of the highest order derivative involved in the given differential equation. तो highest order का हमें देखना होगा। जैसे अब highest order के पावर में जो होगा, जैसे यहाँ पर highest सिर्फ एक ही है, dy dx फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसके पावर में अगर आप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी इसकी जो डिग्री है 1 है। ये है सिंपली इसमें डी टू वाई है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसके पावर 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। यहाँ चेक करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स 2 है, ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा था, लेकिन इससे बड़ा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो थर्ड ऑर्डर का, इसके पावर 1 दिखाई दे रहा था, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। अब बात करेंगे 9th की, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसमें देख रहे हैं इसके पावर भी 1 है। मतलब हमें क्या करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है, फिर उसके एक पावर को देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर और तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और इसका पावर 1, तो मतलब इसका क्या हुआ, इट मीन्स इट इज़ ऑफ डिग्री 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देख लेते हैं 10th की बात करते हैं। 10th में अब क्या है कि डी वाई डी एक्स है, 2 भी है इसमें, डी वाई डी एक्स इसके पावर 2 है, तो 10 जो है 2 का है। ठीक है, यही एक ऐसा है जो कि 2 डिग्री का है। तो यही करना है कि
हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है, और उस ऑर्डर के जो पावर में जो है वो आपकी डिग्री होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और नोट एक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों क्या होने चाहिए, डिग्री और आपके ऑर्डर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होते ही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर watching our videos. Share it to students and to your friends. Thank you so much.